we are going to start your second chapter of your syllabus, that is definitions. In income tax, uh, as far as definition is concerned, this chapter includes uh, new words, new terminologies which required to be learned, okay, before enter into the subject. Okay, without it you can't understand it well, because the subjects may be used in different place, in different point of view, but here you need to understand this particular terms in uh, income tax point of view. So we need to understand the meaning of the specific words used in the context of taxation. टैक्सेशन के कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे शब्द हैं जो हमें नए शब्द हैं वो पढ़ने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे. एंड दिस इज कॉल्ड द टर्मिनोलॉजीज ऑफ टैक्सेशन. टैक्सेशन की टर्मिनोलॉजीज कहते हैं. ओके, सो दिस इज योर सेकेंड चैप्टर, चैप्टर नंबर 2. एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज डेफिनेशंस. नाम ही उसका डेफिनेशंस है. तो अलग अलग डेफिनेशंस, परिभाषाएं ગુજરાતીમાં કહીએ તો વ્યાખ્યાઓ આપણે શીખીશું. તો કઈ કઈ વ્યાખ્યાઓ, કઈ કઈ ડેફિનેશન છે, લેટ્સ સ્ટાર્ટ વન બાય વન, એક પછી એક સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. ફર્સ્ટ ડેફિનેશન ઇઝ ઇન્કમ ટેક્સ. ગુજરાતીમાં આવકવેરો, हिंदी में आयकर. तो व्हाट इज इनकम टैक्स? Very simple definition, and this definition we must require to learn first, because the subject is taxation, and the most IMP, or we can say a most important tax, is the income tax, direct tax. So what is income tax? Tax collected by the central government for each financial year on total taxable income of an SSC earned during the previous year is called income tax. Okay, you are not allowed to change in this definitions. You have to learn, you have to remember the definition in this way, right? You may present in your own way, but it must be include this contains. Okay, most of the definition given by the income tax act are inclusive definition. There is no any perfect definition is given. What included? Inclusive definition, that means what included in this terms. A term માં શું include થાય છે એની વાત કરીએ છીએ. So that inclusive definitions are there. Okay, so the definition is tax collected by the central government. Okay, who collect the tax? Income tax, central government. Tax collected by the central government for each financial year, દરેક financial year માં, on the total taxable income of an SSC earned during the previous year is called income tax. Okay, so in this definition there are the word financial year, taxable income, SSC. Okay, it's not SSC, it is SSC. Okay, so these are another new words. We will discuss it later on. Okay, one by one, that will be comes in our discussion. So income tax means what in Gujarati, or we can say કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા કરદાતાની પાછલા વર્ષની ઇન્કમ ઉપર દર વર્ષે લેવામાં આવતો પ્રત્યક્ષ વેરો એટલે આવકવેરો. ओके, केंद्र सरकार द्वारा एसएससी की पिछले फाइनेंशियल ईयर के ऊपर टोटल टैक्सेबल इनकम के ऊपर हर साल लिए जाना वाला कर, अर्थात आयकर, दैट इज इनकम टैक्स. वेरी सिंपल डेफिनेशन और स्मॉल एंड short definition. Okay, and the next definitions are little bit long. Okay, so I hope you understand what income tax is. Income tax નું મતલબ સમજાઈ ગયું બધા?
Okay, if you are getting, you just thumbs up or say yes. Okay, so then we will go ahead. I cannot see your facial expression that you are getting. Okay. Now the next term is yes. Sorry. Yes. Okay. Yes. તમે લખ્યું મારે નતું yes બોલો. Okay. Next term is uh, SSC. Okay. Read the spelling very carefully. A double S E double S double E. A double S E double S double E. SSC. Okay. The गुजराती मीनिंग इज करदाता, टैक्स देने वाला, कर देने वाला. But that definition or the translation is not enough. According to the Income Tax Act 1961, Section 27 said that SSC means the following persons. The following are included in the terms of or in definition of SSC. A person liable to pay any tax or any other sum of money under this act. એવો કોઈ પણ વ્યક્તિ કે જે આ કાયદા હેઠળ કરવેરાની રકમ અથવા તો બીજી કોઈ રકમ ભરવા માટે જવાબદાર હોય. That person is an SSC. Second thing, every person in respect of whom any proceeding under this act has been taken for the assessment of his income or the loss sustained by him or the amount refunded to due to him, that person is known as an SSC. Third thing is, every person in respect of whom any proceeding has been taken under this act for the assessment of the income of any other person in respect of which he is assessable or the loss sustained by such other person or the refund due to such other person, that person is also an SSC. Fourth person is a person who is deemed to be an SSC under any provision of this act. આ કાયદાની કોઈ પણ જોગવાઈ હેઠળ જો એને SSC માની લેવામાં આવ્યું હોય, deemed that means मान लेना. तो अगर किसी को SSC मान लिया गया हो इस एक्ट के अंडर में तो वो भी SSC है. And a person who is doomed to be an SSC in default. Okay, SSC in default. Okay, that means જેને આ કાયદાના અંડરમાં કઈ ગુનો કર્યો હોય, ઓકે, કઈ ડિફોલ્ટ કર્યો હોય, તો એવા વ્યક્તિને પણ આપણે શું કહીએ છે? SSC કહીએ છે. So these are the person who is known as, not only, and in simple terms we can say what is SSC. SSC means what? SSC means कर देने वाला, टैक्स देने वाला, करदाता, right? But that definition is not enough according to the law. What law said, what act said, okay, SSC means person who is liable to pay the tax or any other amount under this act, every person in respect of whom any proceeding under this act has been taken for the assessment of his income or the loss sustained by him or the amount refund due to him, or every person in respect of whom any proceeding has been taken under this act for the assessment of income of any other person, either the loss sustained by any other person or the amount refunded due to such other person. A person who is deemed to be an SSC under this any provision of this act, or the SSC in default, that all persons are included in the terms of SSC. Okay, तो ये सारे SSC, ये लोग जो है, this is called inclusive definition. इसको हम inclusive definition बोलते हैं. Inclusive definition का मतलब होता है कि इस definition में क्या क्या आता है. What things are to be included in this definition of SSC, right? That is mentioned. Not clear-cut definition of SSC is given. SSC terms
include these things. The 5 kinds of people, 5 પ્રકારના વ્યક્તિઓ જે છે એને આપણે એસએસસી કહીએ છીએ. પહેલો કે જે આ કાયદાની અંડરમાં ટેક્સ ભરવા માટે કે બીજી કોઈ રકમ ભરવા માટે જવાબદાર ઠરતો હોય. બીજો કે તેને કમાયેલી આવક ઉપર અથવા તો એને કરેલા લોસ ઉપર કે એને રિફંડ થવાની રકમ માટે આ કાયદાની અંડરમાં કોઈ પ્રોસિજર કરવામાં આવી. ત્રીજું કે જે બીજા કોઈ થર્ડ પાર્ટી માટે આ વ્યક્તિ ઇન્કમ માટે અથવા તો એને કરેલા લોસ માટે કે એને લેવાના રિફંડ માટે જવાબદાર થતો હોય, અથવા તો જેને આ કાયદાની કોઈ જોગવાઈ હેઠળ એસએસસી માની લેવામાં આવે, રાઈટ, અથવા તો જે કોઈ ડિફોલ્ટ કરે, કોઈ ગુનો કરે, કોઈ પ્રોબ્લેમ કરે, તો એવા વ્યક્તિને પણ આપણે એસએસસી તરીકે ઓળખીશું. સો ધીઝ આર ધ terms or explanation what SSC includes, right? I hope you got it. Okay, ખબર પડી હશે બધા. Clear? So the term SSC is over here. I hope you got it. Is there any confusion? No, sir. No. So let's we go for the next definition. Now next definition is assessment. एसएससी के बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है असेसमेंट. असेसमेंट वैसे क्या होता है? चेक करना से हम असेसमेंट बोलते हैं. नॉर्मली हमारी सप्लीमेंट्री क्या होती है? एसएस होती है. तो एसएस का मतलब नॉर्मल भाषा के अंदर हम चेक करना बोलते हैं. टू चेक, दैट इज असेस, राइट. असेसमेंट की डेफिनेशन एक्ट में क्या है? इनकम टैक्स एक्ट में क्या बोलते हैं? इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमिनिंग द करेक्टनेस ऑफ द इनकम ऑफ एन एसएससी एंड assessing the amount of tax payable by him and the procedure for imposing tax liability. Okay, व्यक्ति के द्वारा कमाई गई इनकम की सत्यता को तपास करना या चेक करना और उसको भरने पात्र कितनी टैक्स की रकम होती है उसे ज्ञात करने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम असेसमेंट बोलते हैं, राइट. વ્યક્તિ દ્વારા કમાયેલી આવકની ખરાઈ, કરેક્ટનેસ તપાસવી અને તેની ટેક્સેબલ ઇન્કમ કરપાત્ર આવક નક્કી કરીને તેના પર ભરવાના થતા કરની ગણતરી કરવાની જે પ્રક્રિયા છે, that is called an assessment. So what is the assessment? It's a process of determining the correctness of the income of an SSC and assessing the amount of tax payable by him and procedure for imposing tax liability. ત્રણ વસ્તુ છે. આવકની સત્યતા નક્કી કરવી, કરેક્ટનેસ નક્કી કરવી, રાઈટ, એને ટેક્સેબલ હોય એવી ઇન્કમ નક્કી કરવી અને એને ભરવાના થતા ટેક્સની ગણતરી કરવી. એ આખી પ્રક્રિયાને આપણે શું કહીએ છીએ? એસેસમેન્ટ કહીએ છીએ. ગુજરાતીમાં આકારણી કહેવાય, આકારણી, અસેસમેન્ટ, રાઈટ. Okay, so this is the assessment term. Next term is assessment year and previous year. Most IMP. Assessment year and previous year. So when we are talking about year, so it's a period of 12 months. अगर हम साल की बात करते हैं तो 12 महीने का समय, उसको हम क्या बोलते हैं? ईयर बोलते हैं. तो असेसमेंट ईयर यानी कि 12 महीने का समय है, वो तो फिक्स है. An assessment year is a period of 12 months commencing on 1st April and ending on 31st March. Okay, 12 महीने का साल तो जनवरी से भी शुरू हो सकता है, लेकिन नहीं, ये जो 12 महीने हम बता रहे हैं असेसमेंट ईयर का मतलब होता है कि हर साल 1 अप्रैल को जो साल शुरू होता है, commencing on 1st April and ending on 31st March. That is assessment year. It is year in which the income of previous year is to be assessed. ये वो साल है जिस साल के अंदर पिछले साल की इनकम का असेसमेंट होता है. जैसे 2021-22 है तो
तो उसमें 2020-21 के साल की इनकम का असेसमेंट होगा। तो जिस साल में असेसमेंट होता है उसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं। असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों ही 12 महीने की ही मुद्दत, 12 महीने का ही पीरियड है। दोनों 1 अप्रैल को शुरू होते हैं और 31 मार्च को ही खत्म होते हैं। बट असेसमेंट ईयर वो होता है कि जिसके अंदर हम असेसमेंट करते हैं। किसका असेसमेंट करते हैं? पिछले साल की इनकम का असेसमेंट करते हैं। तो असेसमेंट ईयर इज द ईयर, it's a period of 12 months starting from 1st April and ending on 31st March, in which the income of previous year is to be assessed. That is known as an assessment year. उसे हम assessment year बोलते हैं। ये डेफिनेशन है। उससे ही रिलेटेड दूसरा है प्रीवियस ईयर। ओके, पिछला साल, पाछलू वर्ष, गत वर्ष। इस प्रीवियस ईयर को हम फाइनेंशियल ईयर, इनकम ईयर, अकाउंटिंग ईयर भी बोलते हैं। ये वो साल है जिसकी इनकम का असेसमेंट होना है। ये वो साल है जिसकी इनकम पर टैक्स देना है। ये वो साल है जिसमें कमाई गई इनकम टैक्सेबल होती है। ये भी 12 महीने का ही पीरियड है। प्रीवियस ईयर मीन्स द फाइनेंशियल ईयर immediately preceding the assessment year. Immediately preceding the assessment year. ओके, असेसमेंट ईयर के एग्जैक्ट आगे वाला, यानी कि जब असेसमेंट ईयर खत्म होता है उसके एग्जैक्ट पिछले दिन प्रीवियस ईयर जो है शुरू होता है। जहां असेसमेंट ईयर शुरू होता है वहां प्रीवियस ईयर खत्म होता है। ठीक है, तो अगर मान लो कि 2021-22 आपका असेसमेंट ईयर है जो 1 अप्रैल 2021 से शुरू होकर 31 मार्च 2022 को खत्म होता है, तो 1/4/2021 के एग्जैक्ट आगे की तारीख को जो खत्म होने वाला है, तो 1/4/2021 को 1/4/2021 की एग्जैक्ट आगे की तारीख 31 मार्च 2021 इस साल को खत्म होने वाला। तो इसको अगर यहां पर खत्म होता है तो शुरू यहां से होता होगा 1/4 से। तो 1/4/2020 से लेके 31/3/2021 तक का जो समय है वो प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर हमेशा असेसमेंट ईयर से जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए इस तरह का आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है। असेसमेंट ईयर इज द पीरियड ऑफ 12 मंथ starting from 1st April and ending on 31st March, in which the income of previous year, income of financial year is assessed. And previous year or financial year means the year of 12 month, period of 12 month, which is immediately preceding the assessment year. It is and exactly immediately before the assessment year, before the date on which the assessment year is started. જે તારીખે તમારું એસેસમેન્ટ યર શરૂ થાય એની તરત આગળની 31મી માર્ચે પૂરા થતા 12 મહિનાનો સમય। जिस तारीख को आपका असेसमेंट ईयर शुरू होता है उसके एग्जैक्ट पहले की जो 31 मार्च है उस तारीख को पूरे होने वाले 12 महीने के समय को हम क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं। ओके, and then after the explanation is given, this is previous year and this is assessment year. Most IMP definition and frequently to be asked in the examination. Hope you understand. Is there any question in this definition, assessment year and previous year? And mostly both the definitions are to be asked jointly. Okay, write a short note on assessment year and previous year. Explain the term assessment year and previous year. This kind of question may ask in your exam. Is there any question? No, sir. Shall we go ahead? Okay. Now the next definition is person.
इन गुजराती इट इज नोन एज शख्स, व्यक्ति। ठीक है, तो पर्सन किसे बोलते हैं? पर्सन की डेफिनेशन इस तरह से है कि सेक्शन 231 ऑफ द एक्ट सेड दैट पर्सन टर्म्स और द डेफिनेशन ऑफ पर्सन इंक्लूड द फॉलोइंग। नीचे वाले सभी लोग पर्सन में इंक्लूड होते हैं: एन इंडिविजुअल, ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ए कंपनी, ए फर्म, an association of person or body of individual, a local authority, and every artificial and judicial person not included in the above. These all peoples are known as person. इन सब को हम गुजराती में शख्स और इंग्लिश में पर्सन बोलते हैं, हिंदी में भी शख्स ही बोलते हो। तो शख्स शब्द में, पर्सन वर्ड में व्यक्ति तो इंडिविजुअल आ ही गया है, लेकिन व्यक्ति से ज्यादा एप्रोप्रिएट वर्ड शख्स है, शख्सियत। यहां कंपनी को भी शख्सी बोला जाता है, फर्म को भी शख्सी बोला जाता है, ऑर्गेनाइजेशन को भी शख्सी बोलते हैं, पर्सन ही बोला जाता है उसको। इंडिविजुअल अलग, उस पर्सन वर्ड में ये सब आ जाते हैं। द पर्सन इंक्लूड इंडिविजुअल यानी व्यक्ति, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, and every artificial and judicial person which is not included in the above, that all are called persons. व्यक्ति, हिंदू अविभक्त कुटुंब, कंपनी, पेढ़ी, व्यक्तियों का समूह और इंडिविजुअल्स का समूह यानी कि शख्सोનું મંડળ અને વ્યક્તિઓનું મંડળ, એસોસિએશન ઓફ પર્સન એન્ડ એસોસિએશન ઓફ બોડી ઓફ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ, local authority, municipality, ग्राम पंचायत एक्सेट्रा, and every artificial and judicial person, उन सबको हम क्या बोलते हैं? पर्सन। की डेफिनेशन है पर्सन। गॉट इट? ठीक है, अब जैसे मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूं, आपको आइडेंटिफाई करना ये इसमें से क्या है। जैसे मैं बोलूं कि रिलायंस लिमिटेड, तो वो क्या है? इन सात में से क्या है? रिलायंस लिमिटेड को क्या बोलेंगे? यस, गिव मी आंसर। कंपनी। कंपनी, यस। लिमिटेड आ गया, रिलायंस लिमिटेड तो कंपनी है। ओके, मैं ये बोलूं डॉक्टर एच.डी. पवार, तो क्या है? एन इंडिविजुअल। यस, एन इंडिविजुअल। ओके, मैं ये बोलूं डॉक्टर पवार एंड हिज फैमिली, सेकंड वाला। ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो बिजनेस चलाते हैं, फर्म चलाते हैं, पेढ़ी चलाते हैं, अपने क्या बोल सकते हैं, वारसागत जो बिजनेस होता है उसको आगे ले जाते हैं और उसी के नाम पे टैक्स भरते हैं, उनको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोलते हैं। ठीक है, मिस्टर केदारनाथ एंड सन्स, मेसर्स केदारनाथ एंड सन्स, तो ये क्या है? फर्म है, यस, पेढ़ी है। चौधरी ब्रदर्स, देसाई ब्रदर्स, ठीक है, तो ये कुछ लोगों ने बनाई हुई पेढ़ी है, फर्म है। फिर हम बोलते हैं एक वर्ड है अटीरा। अटीरा, अटीरा एक नाम है, एक समूह है, इसको हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन बोलते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, ऐसा कुछ उसका फुल फॉर्म है, आप गूगल पे सर्च कर लें, अटीरा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स,
इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, ऐसे कुछ समूह बनते हैं, सोसाइटीज बनती है, तो उसको हम बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अब फर्क इन दोनों में इतना है कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन में सभी लोग आ जाते हैं, एनीबडी कैन बी अ मेंबर, चाहे वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, चाहे कंपनी हो, चाहे फर्म हो, चाहे इंडिविजुअल हो, सभी लोग जिसमें मेंबर बन सकते हो उसको हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन बोलते हैं। और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ये है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति, इंडिविजुअल व्यक्ति ही मेंबर बन सकता है, तो उसको बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बोलते हैं। जैसे स्पोर्ट्स क्लब, क्रिकेट क्लब, ठीक है, जिसमें सिर्फ व्यक्ति ही सभ्य बन सकते हैं, व्यक्ति ही उसमें मेंबर बन सकते हैं, तो उसे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बोलते हैं, ठीक है। महसाना म्युनिसिपैलिटी, तो उसको क्या बोलेंगे हम, क्या है वो इन सातों में से? लोकल लोकल अथॉरिटी, ठीक है ना। रामोसणा ग्राम पंचायत, लोकल हेमचंद्राचार्य नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी, वो लोकल थोड़ी है। उसे क्या बोलेंगे? अब हेमचंद्राचार्य उत्तर गुजरात यूनिवर्सिटी ना तो कंपनी है, ना फर्म है, ना इंडिविजुअल है, ना बॉडी ऑफ एसोसिएशन है, ना लोकल अथॉरिटी है, कुछ भी नहीं है, तो फिर क्या बच गया? आर्टिफिशियल एंड जुडिशियल पर्सन, लास्ट वाला, क्या बोलते हैं उसको? आर्टिफिशियल एंड जुडिशियल पर्सन। एक और एग्जांपल, जैसे सरदार विद्या भवन ट्रस्ट, ठीक है ना, तो सरदार विद्या भवन ट्रस्ट जिस कॉलेज में आप पढ़ते हो वो सरदार विद्या भवन ट्रस्ट से संचालित है। तो ऐसे ट्रस्ट, मंडल, ठीक है, यूनिवर्सिटीज, इन सबको हम आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में लेते हैं। दीज आर द रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन बट नॉट कॉल्ड ए कंपनी, नॉट कॉल्ड ए फर्म, not called a local authority, so that is known as artificial and judicial person, right? So the question may be asked in your examination in this kind, right? Classify the following in the definition of person, नीचे के लोगों को या नीचे की व्यक्तियों को पर्सन की डेफिनेशन में क्लासिफिकेशन करो, तो अकॉर्डिंग टू पर्सन ये क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। ये जो मैंने जिस तरह से नाम दिए उस तरह से नाम आपको दिए गए होंगे और आपको ये आइडेंटिफाइड करना है कि हु इज दिस, ठीक है। मैं बोलूं कि कॉलगेट पामोलिव लिमिटेड, तो क्या है वो? कंपनी कंपनी। सचिन तेंदुलकर, एन इंडिविजुअल एन इंडिविजुअल। महेंद्र सिंह धोनी, वही अमिताभ बच्चन, वही एन इंडिविजुअल। हाँ सिंपल, हंसा चौधरी, निकिता पित्रोड़ा, ये सारे इंडिविजुअल में आते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी फैमिली की बात करें तो उसके पीछे लिखा होगा बराबर कि मिस्टर एंड हिज फैमिली, so that is Hindu individual family who is running their forefathers business or their we can say a family business, that is called Hindu individual family। कंपनी भी पता चल जाती है, फर्म, ओके, तो फर्म में ब्रदर्स, मेसर्स, इस तरह के नाम दिए होते हैं। इंडिविजुअल फर्म भी हो सकता है और पार्टनरशिप फर्म भी हो सकता है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के एग्जांपल भी दिए मैंने, और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन भी आप समझ लो। तो ये है डेफिनेशन ऑफ पर्सन। वैसे है कुछ नहीं, छोटा सा है, ओके। क्वेश्चन मे बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, राइट द डेफिनेशन ऑफ पर्सन अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट। तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है कि पर्सन इंक्लूड द फॉलोइंग, बस, और कोई कथा नहीं करनी है।
पर्सन इज मोर इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वो सब पूरा पेज नहीं भरना है। अगर आपको 4 मार्क की डेफिनेशन भी पूछी है तो सिर्फ ये 7 अक्षर ही लिखने, 7 लाइनें लिखनी, 7 से 8वीं लाइन नहीं आनी चाहिए। दिस इज एक्ट, जितना है उतना ही लिखना है आपको। So this is the definition of person. I hope you got it. आगे बढ़े। यस सर। चलो, कोई क्वेश्चन है? ये कौन बीच में चिल्लाया अभी? ये रूही के बैकग्राउंड से आवाज आई। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट इज इनकम। नेक्स्ट डेफिनेशन इज इनकम, आवक। अब ये समझाने की क्या जरूरत है, सबको पता है आवक क्या होती है, बट इनकम टैक्स एक्ट में आवक की डेफिनेशन अलग है। हम जो कमाते हैं उसको इनकम बोलते हैं, वी नो दैट, बट अकाउंट में इनकम का मतलब अलग होता है, टैक्सेशन में इनकम का मतलब अलग होता है, और किसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनकम का मतलब अलग होता है। तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझना पड़ता है। अभी हम टैक्सेशन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट डू यू मीन बाय इनकम, इनकम का क्या मतलब है। बहुत लंबी डेफिनेशन है, सबसे लंबी डेफिनेशन ये है। अब इतनी लंबी डेफिनेशन को आप लिख भी नहीं सकते, अगर आप बुक में पढ़ेंगे तो बहुत लंबी डेफिनेशन, लेकिन उसमें से कुछ पॉइंट निकाले हैं और उसको हम एज एन डेफिनेशन एक्सेप्ट कर लेंगे और इसी को लिखना है आपको, ठीक है। सो व्हाट इज इनकम? So there is no any fixed definition is given. The definition of income given in the act is inclusive, not exhaustive, not perfect definition. Inclusive definition is given. If following is the things which included in the terms income. It says that certain items are included in the terms of income, and summary of the important rule which give the meaning of income is as below. Summary ये है, तो पहली है एन इलीगल इनकम इज टैक्सेबल एज लीगल इनकम। अगर कोई गैर कायदेसर तरीके से कमाई गई आवक है तो उसे भी लीगल इनकम माना जाएगा और उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। मतलब इलीगल इनकम भी टैक्सेबल है, पहला नियम। इलीगल इनकम इज टैक्सेबल, गैर कायदेसर आवक पण कर पात्र गणाय। ओके, તમે ચોરીથી કમાયા હોય ને, સરકારને એમ કહો કે હું ચોરીથી લાવ્યો છું, તો તમારે ટેક્સ ભરવો પડે એના। इनकम रिसीव्ड एट इरेगुलर इंटरवल इज टैक्सेबल। ऐसा जरूरी नहीं है कि इनकम रेगुलर इंटरवल पे ही मिलनी चाहिए, हर महीने, हर साल, नो, हर रोज, कभी भी मिले, साल में एक दिन भी अगर आपको इनकम होती है तो दैट विल बी टैक्सेबल, तो उसे टैक्सेबल मान दिया जाएगा। तो इंटरवल मायने नहीं रखता है। टैक्सेबल इनकम शुड हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम द एन आउटसाइड सोर्स। टैक्सेबल इनकम वो होती है कि जो आउटसाइड सोर्स से मिले हमें। इंटरनल सोर्स के द्वारा जो जनरेट होता है उसे इनकम नहीं बोलते। आपके पापा ने आपको पॉकेट मनी के लिए पैसे दिए तो वो आपकी इनकम नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो इंटरनल सोर्स है, राइट। आपके पापा ने आपकी मम्मी को पैसे दिए, सो दैट इज नॉट कॉल्ड एन इनकम ऑफ हिज मदर और हर मदर। वापरने के लिए दिए, वो इनकम आपके पापा की है जो बाहर से, उनको जहां से मिली उनके लिए इनकम है, बट आपकी मम्मी के लिए वो इनकम नहीं मानी जाती। इनकम वो मानी जाती है जिसे आउटसाइड सोर्स से मिली। जैसे आप मुझे देते हैं पैसे तो वो मेरे लिए इनकम है, एंड आई एम लायबल टू पे द टैक्स ऑन इट। तो मुझे उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा अगर मेरी इनकम एक लिमिट से बाहर होती है तो, ठीक है। नेक्स्ट, टैक्सेबल इनकम शुड हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइड सोर्स हो गया। एनी बेनिफिट कन्वर्टेबल इनटू मनी इज आल्सो कंसीडरेड एज इनकम। ऐसा कोई भी बेनिफिट जिसे आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं तो उसे भी हम इनकम ही मानते हैं। जैसे कि नौकरी कर रहे हैं आप, जॉब कर रहे हैं, और जॉब के अंदर आपको अगर रहने के लिए मकान दे दिया गया है तो मकान को भी एसेस करके उसकी इनकम निकालनी पड़ती है, उसे भी इनकम का सोर्स माना जाता है। Merely relief or reimbursement of expenses is not treated as an income.
अगर आपको कोई राहत मिलती है या फिर जो आपने खर्चा किया उस खर्चे को कोई कंपनसेट करता है, रिम्बर्स करता है या उसको भरपाई करता है, तो उसे इनकम नहीं माना जाएगा। गिफ्ट दैट मीन्स एनी सम ऑफ मनी exceeding rupees 50,000 received without any consideration by the individual or HUF from any person other than a relative on or after 1/9/2004 is considered as an income. 50,000 से ऊपर अगर बिना किसी कंसीडरेशन के अगर आपको गिफ्ट मिलती है तो उसे भी हम इनकम मानते हैं 1/9/2004 के बाद। ठीक है, मतलब 50,000 तक फ्री है, 50,000 तक अगर गिफ्ट मिलती है, ठीक है ना, तो वो फ्री है। गिफ्ट दैट मीन्स सम ऑफ मनी एक्सीडिंग 50,000, 50,000 से ऊपर है तो वो इनकम है, 50,000 से नीचे नहीं, राइट। विदाउट कंसीडरेशन, किसी भी प्रकार का लाभ दिए बिना अगर वो देता है गिफ्ट, तो अगर लाभ देता है तो वो व्यापार हो जाएगा, फिर वो गिफ्ट नहीं हो जाएगा। बाय इंडिविजुअल और HUF और पर्सन अदर देन रिलेटिव, रिलेटिव के सिवाय। अगर रिलेटिव देता है 50,000 की गिफ्ट तो वो टैक्सेबल नहीं मानी जाएगी, वो इनकम नहीं है। अब रिलेटिव की पूरी डेफिनेशन है, कौन कौन रिलेटिव में आता है, सबको रिलेटिव नहीं ले सकते। मेरे भाई का ससुर और उसका भाई, वो मेरे लिए रिलेटिव में नहीं आता है, उसकी डेफिनेशन अलग है। रिलेटिव में मैं, मेरे पापा, मेरी माँ, पापा के भाई, मदर के भाई, ठीक है, पत्नी, पत्नी के भाई, तो ये एक लिमिट क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ है, उतने तक की लिमिट में जो आता है वो सारे रिलेटिव्स है। अगर उनसे कुछ मिलता है 50,000 से ज्यादा है तो भी टैक्सेबल नहीं माना जाएगा। इसके अलावा और कोई भी अगर आपको 50,000 से ज्यादा बिना किसी कंसीडरेशन के अमाउंट देता है तो उसे इनकम माना जाएगा और आपको उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। इनकम अराइजिंग फ्रॉम वास्टिंग एसेट्स बाय वे ऑफ रॉयल्टी इज ऑल्सो ट्रीटेड एज एन इनकम। रॉयल्टी का मतलब एक टाइप का किराया होता है, वैसे भाड़ा होता है। जो वास्टिंग एसेट होती है, खत्म होने वाली एसेट, जैसे किसी के खेत में तेल का कुआं निकल गया या कोयले की खान निकल गई, तो वो खान या कोयले का कुआं उसने किसी कंपनी को दे दिया और उसमें से जो जो खुदाई होती है, जो निकलता है, उसके ऊपर टन के हिसाब से उसको रॉयल्टी मिलती है। जो लेखक होते हैं उनको रॉयल्टी मिलती है, जो आर्टिस्ट होते हैं उनको रॉयल्टी मिलती है। तो ये रॉयल्टी की इनकम भी टैक्सेबल मानी जाती है। कैजुअल इनकम्स आर टैक्सेबल। कैजुअल इनकम यानी कि जो इनकम अनएक्सपेक्टेड, अनफोर्सीन हो, जो आपने एक्सपेक्ट ना करी हो, ऐसी इनकम से अगर ऐसी कोई चीज से भी अगर आपको पैसे मिलते हैं तो उसे भी हम इनकम मानते हैं। तो ये सारी चीजें हैं इनकम की डेफिनेशन। और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत लंबी डेफिनेशन है, लेकिन सारी की सारी चीजें लिखना एक टाइम लिमिट के अंदर डिफिकल्ट है। तो ये जो मेन मेन पॉइंट है, उस पॉइंट को निकाल के ये डेफिनेशन इनकम की बनाई है, और आपको इतना ही तैयार करना है, चाहे कुछ भी पूछो इतना ही लिखना है। डेफिनेशन ऑफ इनकम पूछे तो इतने। अगर आप पढ़ना चाहे अपने नॉलेज के लिए तो बुक में देख सकते हैं, लगभग 3 पेज की डेफिनेशन है इसकी, ठीक है ना। लेकिन हमें इतना ही तैयार करना है। व्हाट इज इनकम? इनकम मीन्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 224 दिस आर द इनकम्स। गॉट इट? नेक्स्ट है, अब इनकम की आगे चलते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम। अब ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब होता है कि इट इज टोटल टैक्सेबल इनकम अंडर ऑल द 5 हेड्स। कल मैंने 5 हेड्स बताए थे आपको सिस्टम में। सैलरी इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। इन सबको मिला के टोटल जो इनकम बनती है
और बिफोर मेकिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U, 80C से लेके 80U तक के डिडक्शन माइनस करने से पहले जो इनकम बनती है उससे हम ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम. This is the definition. Simple definition is there. Then after total income is an income of an SSE from all the source which he has to pay the tax. In other words, it is taxable income, or we can say income of total 5 heads after deducting डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U. इन शॉर्ट जैसे हम नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं उसी तरह की बात है. ये टोटल इनकम मतलब टैक्सेबल इनकम हो गई, डिडक्शन माइनस करने के बाद जो टैक्सेबल बचती है वो, और ग्रॉस का मतलब टैक्सेबल नहीं है, अभी डिडक्शन बाकी. तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस है. नेक्स्ट इनकम आती है हमारी कैजुअल इनकम. कैजुअल नाम ही है कैजुअल, ठीक है ना. कहीं आपने सुना है कैजुअल वर्ड, सुना है कहीं? कैजुअल वियरिंग होता है, पता है? यस सर, कैजुअल वेयरिंग फिर. हाँ, तो कैजुअल का मतलब क्या होता है? जो हर रोज नहीं होता है, कभी कभी, प्रसंगोपात, दैट इज कैजुअल. तो ऐसी इनकम का जो आपको रेगुलर सोर्स से नहीं मिलती है, जो अनएक्सपेक्टेड है, अनफोर्सीन है, आपने कहीं उसकी अपेक्षा नहीं की, ऐसी इनकम अगर आपको मिलती है तो उसे हम कैजुअल इनकम की डेफिनेशन में लेते हैं. कैजुअल इनकम इज दैट इनकम विच इज अनएक्सपेक्टेड एंड अनफोर्सीन. जो एक्सपेक्टेड नहीं है, पहले नहीं मिली है, कभी नहीं मिली है और आगे भी नहीं मिलने वाली है. जैसे आपको 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, क्या हर साल लगेगी? जितनी बार आप लॉटरी की टिकट खरीदेंगे उतनी बार आपको लॉटरी लगेगी? नहीं लगेगी. तो उसे हम कैजुअल इनकम बोलते हैं. इट इज नॉट रिसीव्ड फ्रॉम रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम, इट इज नॉन रिकरिंग इनकम. एग्जाम्पल गिवन, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल, रेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस. ऐसी जो इनकम्स होती हैं उसको हम कैजुअल इनकम बोलते हैं. कैजुअल इनकम पर जो इनकम टैक्स है वो फिक्स रेट से लगता है, फ्लैट रेट से लगता है, 30% टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस एजुकेशन सेल्स. नो इनकम इज डिडक्टेबल बाय वे ऑफ एक्सपेंसेस फ्रॉम सच कैजुअल इनकम. कोई खर्चा उसमें से माइनस नहीं मिलता है, सीधा टैक्स कट जाता है. जैसे किसी ने कौन बनेगा करोड़पति में पार्टिसिपेट किया और 1 करोड़ रुपए जीत गया, तो 1 करोड़ में से 35% टैक्स निकाल के 65 लाख ही उसको मिलेंगे, वो सीधा कट ही जाता है. ऐसा अंडर द डेफिनेशन ऑफ कैजुअल इनकम, उसे कैजुअल इनकम बोलते हैं. एक्सेप्शन है कि ये चीजें कैजुअल इनकम में नहीं मानी जाती है, अपवाद है. द फॉलोइंग आर नॉट ट्रीटेड एज एन कैजुअल इनकम, ओके, एंड विच इज चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन, कि वो कैपिटल गेन के अंदर आ जाती है. रिसिप्ट अराइजिंग तुम सबको भी सर की आवाज नहीं आ रही? हाँ, नहीं आ रही. तो बराबर. मेरा भी बराबर. मुझे लगा मेरा नेट गया, ऊपर जाके चेक करा नेट है कि नहीं है तो सही. फिर मैं कहा सबकी गई लगता है. इसीलिए मैंने पूछा. शायद वापस आ गया ना मैं, दिख रहा है ना यस सबको? सर. जी हाँ, सर. नेट की आज की लिमिट खत्म हो गई तो इंडिकेशन आ जाता है पीछे कि आज के दिन का डेटा यूज हो चुका है, अब आगे फिर क्या करते हो सर? चार्ज होगी. चलो ठीक है. क्या बोलते हैं, कैजुअल इनकम के बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन वाले जो है वो कैजुअल इनकम में नहीं आते. जो इनकम कैपिटल गेन के अंडर में चार्जेबल होती है, या फिर बिजनेस प्रोफेशन के अंडर में हो जाती है, या फिर रेम्यूनरेशन ऑफ एन एम्प्लॉय, यानी कि सैलरी, यानी किसी और हेड के अंदर में, जो 5 हेड मैंने बताए थे कल,
उस हेड के अंडर में अगर टैक्सेबल होती है तो उस इनकम को हम कैजुअल इनकम में नहीं लेते हैं। बाकी सारी जो ऐसी अनएक्सपेक्टेड और अनफोर्सिन इनकम है उसको हम कैजुअल इनकम में लेते हैं। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशंस हो गई, यहां तक आज रखते हैं, थोड़ा लंबा हो जाएगा लेक्चर फिर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम ये एग्रीकल्चरल इनकम की बात करेंगे। मोस्ट आईएमपी है और इसकी शॉर्ट नोट पूछते ही पूछते हैं, और थोड़ा लंबा एक्सप्लेनेशन है एग्रीकल्चरल इनकम का, खेती की आवक। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में रखते हैं। आज के लिए इतना ही। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, लेक्चर का रिकॉर्डिंग भी मैंने कर लिया है तो इसको मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। ठीक है, yesterday's lecture I have already share on YouTube. ओके, तो आपने शायद देखा होगा, उसको बार बार देखें। इस लेक्चर को भी मैं रख दूंगा, इसको भी आप बार बार देखना। ठीक है, और लोगों को भी दिखाना, शायद और कोई हमारे ट्यूशन में जुड़ जाए अगर किसी को जुड़ना हो तो। ठीक है, तो ये भी जरूरी है। चलिए, लेक्चर को हम स्टॉप